صدر متحدہ عرب امارات شیخ زید بن النہیان چاندیا ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ پاکستان آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے UAE صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ زید بن النہیان کی آمد پر رحیمیہ خان میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب بھی رحیمیہ خان میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر UAE میں تفصیلی ملاقات بھی ہوگی۔ دونوں رہنما پاکستان اور UAE کے درمیان برادرانہ تعلقات میں مزید بہتری اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ عاصم صدیق لائن پر ہے، مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ ابوظہبی UAE کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن نہیان وہ رحیمیہ خان میں چولستان میں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر ان کا استقبال وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا ہے، اور وہاں پر ان کے درمیان میٹنگ بھی جاری ہے جس میں چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب وہاں پر اس میں موجود ہیں۔ اور اس میٹنگ ہائی آفیشل میٹنگ میں پاکستان میں دو طرفہ جو برادرانہ تعلقات ہیں ان پر بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک فوڈ جسٹس کے طور پر پاکستان کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ نجی دورہ ہے پریزیڈنٹ UAE کا، وہ اس نجی دورے کے دوران یہاں پر شکار بھی کھیلیں گے اور پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے مہمان بھی بنیں گے۔ یہ مہمان نوازی کی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان حکومت کے پاکستان کی جانب سے، جن کے درمیان ہائی آفیشل طور پر یہ میٹنگ بھی کی جا رہی ہے جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دوستانہ جو تعلقات ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں تاکہ ان کو فروغ دیا جا سکے۔ جی عاصم صدیق، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملتان پولیس میں تقرر و تبادلے۔ CPO ملتان نے انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز، محرر سمیت 97 پولیس ملازمین کے تبادلے کر دیے۔ 2 روز قبل خود کی گئی تعیناتیوں کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان پولیس میں تقرر و تبادلے ہوئے ہیں۔ CPO ملتان نے انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز، محرروں سمیت 97 پولیس ملازمین کے تبادلے کر دیے ہیں۔ 2 روز قبل خود کی گئی تعیناتیوں کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ اب آپ کو خبر دیتے ہیں مہنگی گاڑیوں کے حوالے سے۔ پاک سوزوکی موٹرز نے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں 1,60,000 سے لے کر 3,55,000 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سوزوکی کی آلٹو VX کے قیمت میں 1,60,000 روپے اضافہ ہوا ہے۔ سوزوکی کی آلٹو VX کی نئی قیمت 18,59,000 روپے ہو گئی۔ سوزوکی کی آلٹو VX کی نئی قیمت 18,59,000 روپے ہو چکی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں۔ پاک سوزوکی موٹر ویز نے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں 1,60,000 سے لے کر 3,55,000 روپے تک کا اضافہ کیا ہے۔ سوزوکی کی آلٹو VX کی قیمت میں 1,60,000 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ سوزوکی کی آلٹو VX کی نئی قیمت 18,59,000 روپے ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاک سوزوکی موٹرز نے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ خبر دیتے ہیں بہاولپور سے۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گیس بحران۔ ریجنل مینیجر سوئی ناردن بلال اصغر کہتے ہیں بعض علاقوں میں کمپریسر سے پریشر کم ہو جاتا ہے۔ بہاولپور کے تمام علاقوں میں گیس کی برابر سپلائی جاری ہے۔ ایک علاقے کی گیس دوسرے علاقے کو دینے میں کوئی سچائی نہیں۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ بالکل جی، سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ جو گیس نہ ہونے کی شکایتیں ہیں اور جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شکایتیں ہیں وہ بہاولپور کے بعض علاقوں میں بڑھ گئی، جس میں قائد اعظم کالونی ہے، جو سبزی منڈی کے کچھ ایریاز ہیں، اور جو کچھ بہاولپور کے ایسے بعض ایریاز ہیں جن میں جو گیس ہے وہ یا تو آ نہیں رہی یا آ رہی ہے، تو ان کو جو پریشر ہے وہ کافی کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ریجنل مینیجر موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں سر کیا کہتے ہیں پریشر جو ہے بعض علاقوں میں پورا ہے، بعض علاقوں میں کم ہے، اور کچھ علاقوں میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کی شکایت موصول ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا موقف ہوگا آپ کا؟ جی اس میں جنرلی سپیکنگ تو پورا بہاولپور شہر جو ہے اس کو ہم 3 میل ٹائمز کے دوران 8 گھنٹے کے لیے گیس جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور وہ گیس ہم ایک اچھے پریشر پہ دے رہے ہیں۔ باقی اس میں ہمیں کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں، اور جیسے آپ نے ان لوکیلٹیز کا ذکر کیا ہے تو ان کی جو ہمیں کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں ہم اس کو ریڈریس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ود ان ڈے اور 2 یہ ریزالو ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیلنج ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں۔ کمپریسر استعمال کرنے والے ہم نے 458 میٹر جو سے منقطع کیے ہیں اس جگہ پہ، اور اس سے ہمارے سسٹم میں کافی بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس سال 103 کلومیٹر جو لیکنگ لائنز ہیں وہ بھی تبدیل کر رہے ہیں، اور ایک سچویشن روم ہے ہمارا جو کہ
رات 10 بجے تک، جس میں ایک آفیسر ڈیوٹی کرتا ہے اور خود ہی کمپلینٹس کو سنتا بھی ہے اور ٹیمز کو ڈسپیچ بھی کرتا ہے. تو یہ سارے جو انتظامات ہیں ایس این جی پی ایل بہاولپور کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو جو ان سے یہ گیس ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ان سے یہ گیس کی وہ ہم مہیا کر سکیں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ بعض علاقوں میں ایسی بھی شکایت ہیں کہ جو علاقہ مکین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پریشر ہے یا گیس کا کوٹا ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. ہمارے لیے ہمارے پاس 3,03,000 کنزیومر ہے یہاں پر اس ریجن میں، اور ہماری ان میں سے ہر کنزیومر ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جو پلان کرتے ہیں، جو لوڈ مینیج کرتے ہیں، وہ ان تمام لوگوں تک گیس پہنچانے کی مینجمنٹ ہوتی ہے، نہ کہ کسی کو محروم رکھنے کی مینجمنٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ سر. بالکل جی، بہاولپور میں جو گیس کی کمی نہیں ہے اور اس والے سے جتنی بھی شکایت ہیں ان کا ریڈریسل بھی کیا جا رہا ہے، اور بہاولپور میں جن علاقوں میں گیس کا کم پریشر ہے اور جہاں سے شکایت موصول ہو رہی ہیں وہاں پر جو گیس پریشر ہے معمول کے مطابق وہ فراہم کیا جا رہا ہے. جی، گیس کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہ رہا ہے. بہت شکریہ طاہر جگہ. اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں تعینات تھائی لینڈ ایمبیسیڈر چکریٹ کواشوینگ کی ملتان چیمبر آمد. دونوں ممالک کے تجارتی امور کے حوالے سے خصوصی گفتگو. تھائی لینڈ ایمبیسیڈر کی روحی سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں کہ دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی بتائیے گا. بالکل، پاکستان میں تعینات تھائی لینڈین ایمبیسڈر چیکریٹ کی جو ہے وہ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں جو ہے وہ آمد ہوئی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تجارتی امور پر جو ہے وہ بحث کی گئی. اس تمام تفصیل پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی موجود ہے مسٹر چیکریٹ. فرسٹ آف آل وی ویلکم یو ٹو ان ملتان ان سٹی آف سینٹس. کین یو ٹیل می اباؤٹ یور وزٹ ان ملتان اسپیشل چیمبر آف کامرس؟ Yes, this is my first time in Bhutan, but we have heard about Bhutan for a long time, especially famous mango, which we enjoy at our embassy. So our visit, the purpose of the visit is to get acquainted and to explore more opportunity with between Thailand and Bhutan. The visit to Chamber of Commerce is to seek the opportunity that the member of the Chamber of Commerce has introduced to us, and then there are many things that we can look into, especially in terms of food processing and the food production that I think Thailand and Bhutan can work on that. And another area that we can work on also the possibility of the sustainable tourism that we can share with you, because the tourism of course they have many good side, but also there are some negative side as well, and we has experience in terms of tourism for a long time already. And with this resumption of the flight between Pakistan and Thailand, which operate from Islamabad, Lahore and Karachi many times a week, we can see more and more Thai tourists coming to Pakistan. So this should be the opportunity and the new destination for Thai tourists as well. Mr. Chakrit, as we know, Thai has more business in Pakistan. However, which are the steps are being taken by the Thai embassy for the countries for bilateral trades? Yes, last year we have reached one of the highest, actually the record breaking of the trade volume between our two countries, $1.8 billion to be exact. So Pakistan also import the raw material or product from Thailand. For example, rubber, then they make into a very good football, and they export into countries around the world, because people know that Pakistan football are very famous. We would like to make this kind of synergy between our two countries that make the most use of our ability and product in order to contribute to the world as a whole. As I mentioned, you have very good fruit here in Bhutan, but I think challenges from our agricultural product is that they don't have very long life on the shelf. So we make to process it, dehydrate it, or make it into like snack. And also that is the area that we can cooperate on. And also packaging is very important if you want to export this kind of product to another country to appreciate the delicacy of Pakistan. Okay. In the last, what is your message for the business community of this area, especially for South Punjab? We have very good
business people here very talented, and you have very good product. I think with the cooperation between country like Thailand and other country, I think we can have the most use of your quality product. This is not only our business people, but also this go to the local people like farmers and gardeners who plant mangoes, who plant oranges. I think that is more important. Thank you. Right. President Chamber of Commerce में राशिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेशन के हवाले से? दोनों ममालिक के दरमियान टूरिज्म को, तजारत को बढ़ाने के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थाईलैंड के एम्बेसडर साहब ने हमारे ईवान का दौरा किया है और हमारी एक बहुत ही अच्छी मीटिंग आपस में हुई है। बायलैटरल ट्रेड और टूरिज्म दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी मौजूद है, मगर इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में आज हमारी एक बहुत ही तवील मीटिंग हुई है, जिसमें हमने वो सारे इकदामात के ऊपर गौर किया है कि किस तरह टूरिज्म और बायलैटरल ट्रेड को आपस में बढ़ाया जा सकता है। और थाईलैंड में पाकिस्तान की तरफ से बहुत टूरिस्ट जाते हैं और इसी तरह थाईलैंड से भी अब आने शुरू हुए हैं टूरिस्ट पाकिस्तान में। पहले थाईलैंड की तरफ से बहुत कम लोग पाकिस्तान आते थे, मगर आजकल काफ़ी ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो मैं करनी चाहूँगा वो है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। थाईलैंड के पास एग्रीकल्चरल, चूँकि थाईलैंड भी एक ज़री मुल्क है, तो थाईलैंड के पास एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि थाईलैंड के एम्बेसडर साहब के साथ मिलकर थाईलैंड से पाकिस्तान में एग्रो बेस इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र के बारे में भी बात चल रही है। इंशाल्लाह उसमें भी हम कामयाब होंगे और जॉइंट वेंचर्स के बारे में भी हमने बात की है। इंशाल्लाह उसमें भी हम कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। इसमें भी जो है वो हम कामयाब होंगे। आज का जो सेशन था उनका ये कहना था सैयद बुखारी हमारे लिए हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ बहावलपुर में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। मुस्लिम लीग, दीनी जमातें, सिविल और समाजी तंजीमों की एहतजाज में शिरकत। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी अदालतों को नोटिस लेने की अपील कर दी गई है। महमूद जहीर, एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती कबूल नहीं। और इसी हवाले से बहावलपुर के दीनी, समाजी और सियासी जो जमातें हैं वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक बड़ा जम्मे गफीर लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। क्या नामुदुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो अजीमुशान रैली निकाली जा रही है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त स्वीडन में वहाँ कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, उसके लिए सख्त नाला है और सख्त गम में है। और उसका इजहार ये बाहर निकलकर पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहती है कि इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की दहशत गर्दियाँ हम लोग मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, क्या कहेंगे? स्वीडन के हवाले से इन्होंने जो कार्रवाई की है कुरान मजीद के खिलाफ, ये बदतरीन मगरबी दहशत गर्दी है और पूरी उम्मत मुस्लिमा भरपूर एहतजाज करती है और फौरी तौर पर आलमी अदालतों को इस मसले को हल करने के लिए अपने इक़दाम करने चाहिए। आलमी अदालतें मामलात का नोटिस ले। कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, किसी भी मुसलमान के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी समाजी शख्सियत के लिए। यही पैगाम इस एहतजाज में रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर कैरोड पका प्रेस क्लब में एहतजाजी रैली निकाली गई। सदर प्रेस क्लब आशिक हुसैन कुरैशी की क़यादत में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, स्वीडन में कुरान मजीद की जो बेहुरमती की गई उस हवाले से कैरोड पका प्रेस क्लब की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से एक रैली जो है प्रेस क्लब से निकाली गई, जो चौक बुखारी में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त प्रेस क्लब के वाइस चेयरमैन जो है कैसल राना मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी राना साहब, क्या कहेंगे? कुरान पाक की जो है स्वीडन में बेहुरमती की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक जो है वो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।
तो कुरान पाक की जो बेहरमती वहाँ पे की गई है, हम पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जी हमारे साथ है प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अतीकुर रहमान गौरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी गौर साहब, उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वाक़या हुआ? स्वीडन में एहतजाज के दौरान होने वाले हालिया वाक़या जिसमें कुरान पाक को नजर आतिश किया गया, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। चेयरमैन मजलिस आमला लियाकत अली मुगल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी लियाकत साहब, जो है वाक़या, घिनौना वाक़या जो है जो किया गया है स्वीडन में, तो उस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुनिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस्लाम जो है ना, सलामती का मजहब है, सलामती का दीन है, ठीक है। और ये दुनिया जो है हमें जो इंतहापसंद कहती है, ये इनके जो करतूत हैं, कारनामे हैं, ये इनको खुद इंतहापसंद साबित कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी जो रहनुमा हैं साबिक MNA नवाब मामला खान, वो भी इस वक्त एहतजाजी रैली में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे वाक़े के हवाले से जो किया गया है स्वीडन में, शदीद अल्फाज में जो है पूरे पाकिस्तान में मजम्मत की जा रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्वीडन में जो कुछ हुआ है मुसलमानों के साथ, उससे हुकूमत उससे स्टैंड ले और तमाम मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। जी बिल्कुल, कुरान मजीद हमारा दिल और हमारी जान है, और इससे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह है, और इस हवाले से प्रेस क्लब की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। आशिक हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताते हैं, शहीद कलीमुल्लाह सहू के कातिल अवैस अरशद को सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम को मकतूल के वर्सा को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत का मुलजिम को 1,45,000 रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। इक़दाम कत्ल के दिफात में मुलजिम को 1 साल सजा का भी हुक्म सुनाया गया है। कलीमुल्लाह सहू को 14 अगस्त 2021 में जामिया ज़करिया में खंजर के वार करके कत्ल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अकमल खान ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अकमल खान ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, शहीद कलीमुल्लाह सहू के कातिल अवैस अरशद को सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम को मकतूल के वरसा को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएं, मेलसी के 2 नौजवानों के अगवा के बाद बाजियाबी का मामला। नवाही इलाका आलमपुर के 2 नौजवान ताहाल बाजियाब ना हो सके। लड़की के झांसे में आकर घोटकी जाने वाले नौजवान वापस न आए। डाकू ने दोनों को यरकमाल बनाकर तावान मांग लिया। अहले खाना के नौजवान घर से मजदूरी के लिए निकले। अहले खाना गम से निढाल आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नौजवानों को हनी ट्रैप करके घोटकी के इलाका में मुंतकिल किया गया। सिंध पुलिस और अपने रेस्टोरेंट से भी राब्ता किया गया है। बहावलपुर सस्याती की फराहमी के लिए फूड डिपार्टमेंट इन एक्शन। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का फ्लोर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। फ्लोर मिल्स की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 7,17,000 रुपए के जुर्माने। गंदुम कोटे की खिलाफ वर्जी करने पर 3 फ्लोर मिल्स का कोटे का मुअत्तल कर दिया गया है। गंदुम की गैर कानूनी नकलो हमल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना था डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का। आपको बता रहे हैं, गंदुम कोटे की खिलाफ वर्जी करने पर 3 फ्लोर मिल्स का गंदुम का कोटा मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्तान थाना अल्पा के इलाके में 8 साला बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। बिलाल घर से बाहर निकला तो हमसाये के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चा अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुज़श्ता साल 170 से ज्यादा अफराद कुत्तों का शिकार हुए। गुज़श्ता साल 170 से ज्यादा अफराद कुत्तों का शिकार हुए हैं। मुल्तान थाना अल्पा के इलाके में 8 साला बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया है, जिसमें बिलाल घर से निकला तो हमसाये के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बेंच बहावलपुर एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तब्दील। जफर इकबाल अवान और जमशेद इकबाल खाकवानी नए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बहावलपुर तैनात। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक मंसूर वड़ाइच भी ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन में तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के तबादले। मोहम्मद सुल्तान को असिस्टेंट डायरेक्टर खानेवाल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद नवाज को असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुल्तान तैनात कर दिया है। मोहम्मद नवाज को असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुल्तान तैनात कर दिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन में तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के तबादले कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। मिंचनाबाद में डीपीओ बहावलनगर ने 18 थानों के एसएचओ को तब्दील कर दिया। 3 रोज कबल तैनात होने वाले एसएचओ थाना मिंचनाबाद आरिफ बाजवा भी तब्दील कर दिए गए। एसएचओ नवीद नजाकत थाना तहत मोहल से एसएचओ थाना मिंचनाबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर माजिद इकबाल को एसएचओ थाना मैकलोडगंज तैनात कर दिया गया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मुल्तान से खबर देते हैं। जमात इस्लामी का मुल्तान में पावर शो। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक 29 जनवरी को मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मजीद बात कर लेते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, 29 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब अवामुन्नास को भी दावत दी जा रही है। उस हवाले से इस वक्त जो है चौक शहबाज पर कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर शहरियों को दावत भी दी जा रही है और ब्रोशर भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त जिला अमीर भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कैंप के हवाले से और क्या तैयारियां हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 29 जनवरी बरोज़ इतवार आर्ट्स काउंसिल में अवामी कन्वेंशन के से इंशाअल्लाह अमीर जमात इस्लामी खिताब करेंगे, जहां मुस्तकबिल का लाहेअमल भी देंगे और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी करेंगे और लोगों आवाम को ये पैगाम देंगे कि अब जितनी भी पाकिस्तान के अंदर 75 साल से सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने इख्तिदार हासिल किया है, करप्ट अशराफिया है, एस्टेब्लिश, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस वक्त मुल्क जो है दिवालिया होने के करीब है, तो ऐसे में सिर्फ एक क़यादत है जो ज़ाती गर्ज से बालातर होकर लोगों की आवाम की खिदमत कर रही है, वो जमात इस्लामी की क़यादत है। तराजू के इंतखाबी निशान पर जमात इस्लामी का कैंडिडेट जहां भी हो, हम आवाम से अपील करते हैं कि तराजू को मुंतखब करें, जमात इस्लामी को मुंतखब करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल जमात इस्लामी और उसकी क़यादत हल कर सकती है। शहरियों से तो यही अपील है जी, अब जमात इस्लामी को जो है सबको आजमा लिया है, अशराफिया सारे जो है जमात इस्लामी का रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सिर्फ तराजू को वोट दें और हल ही सिर्फ जमात इस्लामी है। बिल्कुल, जो जमात इस्लामी की जानिब से जो कैंप है वो चौक शहबाज पर लगाया गया है और उनका कहना है कि 29 जनवरी को सिराजुल हक जो है वो मुल्तान में। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। हायर एजुकेशन की सुबह भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भर्तियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों और तबादलों पर लगाई गई। फैसले के तहत यूनिवर्सिटीज में नई भर्तियों पर पाबंदी होगी, ऐसा कहना था HEC का और तमाम तालीमी बोर्ड्स को हिदायत जारी कर दी गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चौक सरवर शहीद में साबका लीगी MN ने मलिक सुल्तान हंजरा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क सुल्तान हंजरा ने कोट अद्दू की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात में मलिक सुल्तान ने वजीर आजम को हल्के की महरूमियों से आगाह किया। वजीर आजम का साबका लीगी MNA को हल्के में बेहतरी की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। वजीर आजम की साबका लीगी MNA को हल्के में बेहतरी की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी गई है। साबका लीगी MNA मलिक सुल्तान हंजरा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मलिक सुल्तान हंजरा ने कोट अद्दू की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए लेबर DG खान का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साबिर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मोहम्मद सादिक की शिरकत हुई। सोशल वेलफेयर ऑफिसर बिलाल मतीन, DO इंडस्ट्रीज असगर सद्दीक की शिरकत, लेबर तंजीमों और NGOs के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। कोट अद्दू में सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनूबी पंजाब इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन का दौरा। इंजीनियर अमजद शुएब तरीन ने तहसील ऑफिस में रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया। आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। अमजद शुएब तरीन, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तजा राना भी हमरा थे। आपको बता रहे हैं कोट अद्दू से खबर शामिल करें। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनूबी पंजाब इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन का दौरा। इंजीनियर अमजद शुएब तरीन ने तहसील ऑफिस में रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक किया है। आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी, ऐसा कहना था अमजद शुएब तरीन का। आपको बता रहे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तजा राना भी उनके हमरा थे। अब आपको बताएं जिला लिया में पहला मियावाकी जंगल लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने पौधा लगाकर मियावाकी जंगल का आगाज किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज। जबकि जी डिप्टी कमिश्नर लिया फरहत सर फारूक साहब ने आज लिया के अंदर तारीख रकम कर दिया। लिया के अंदर जब पहले मियावाकी जंगल का बाकायदा इफ्ताह कर दिया गया। यहाँ पर इस इफ्ताह के मौके पर DPO लिया नासिर सियाल साहब के साथ सदर मुमताज मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल, असिस्टेंट कमिश्नर दीगर यहाँ पर महकमा जंगलात के फीसरान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद अपने हाथों से मियावाकी जंगल के पौधे लगाए और यहाँ पर दुआ भी मांगी। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात भी करते। सर यकीनन ये मियावाकी जंगल जो अहमियत का हामिल है, तो क्या मकसद है सर? इसका मकसद ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और पोल्यूशन बस्टिंग के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मियावाकी जंगल लगाएं। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लोकल स्पीशीज प्लस श्रब्स को मिला के लगाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पौधे इकट्ठे लगा दिए जाते हैं। तो ये एक जापानीज था जिसने ईजाद किया
और यहाँ पे हमने भी सारे लोकल जो पौधे हैं वही लगाए हैं और साथ साथ उसके साथ सब्ज होंगे और पानी देने का बाकी इंतजाम भी होगा और ये न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि ये एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, उसकी तरफ एक बड़ा अहम मुस्बत कदम होगा। मस्बत कदम भी है यकीनन। शहर के दरमियान में, वस्त में, शहर के दिल में जंगल जो इसका इफ्ताह किया गया। डीपीओ साहब से बात करें सर, आप क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से एक लिया के लोगों के लिए गिफ्ट है। ये वो मेथड है जिसको एक जापानीज था जिसने ईजाद किया था और उस मेथड के जरिए ये सारी प्लांटेशन की गई है। इंशाल्लाह जो शहर के माहौल है, पॉल्यूशन जो है, उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पर यकीनन जो डीएफओ साहब है उनका बताना है कि इस मिवाकी जंगल के इफ्ताह से न सिर्फ लिया के अंदर पॉल्यूशन कम होने में मदद मिलेगी बल्कि साथ साथ मिवाकी जंगल का जो कंसेप्ट है इसके ऊपर। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे शजरकारी के हवाले से। खानपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खालिद बब्बर ने शजरकारी मुहिम को तेज कर दिया। मुहिम के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सुहेल से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी में मौजूद हूं जहां पर चीफ ऑफिसर खालिद महमूद बब्बर ने शजरकारी मुहिम को तेज कर दिया है। इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी हॉल में यहां पर ग्राउंड में पौधे लगाए जा रहे हैं। सर बताएंगे शजरकारी के हवाले से जो आपने इकदाम उठाया है, अब पौधे लगाए जा रहे हैं, बताएंगे कितने पौधे लग रहे हैं? अलहम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां के हुक्म पर, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के हुक्म पर हमने शजरकारी मुहिम शुरू की हुई है और तकरीबन हमने दो एनजीओ के साथ रब्ता भी किया है। फ्लोरा फाउंडेशन और इंटरनेशनल एनजीओ के ह्यूमन राइट्स वालों के साथ रब्ता किया है। वो भी हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं। हमें उन्होंने पौधे देने का वादा भी किया है और वो हमारे पूरे शहर को खूबसूरत बनाने में हमारे साथ साथ होंगे। हमारा पूरा अमला भी काम कर रहा है और हम पूरे शहर में तकरीबन 15-20 हज़ार पौधे लगा रहे हैं और जिसका हमने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ हम तमाम चौकों को खूबसूरत बना रहे हैं और रोड भी क्लियर कर रहे हैं, मीडियम भी क्लियर कर रहे हैं और पूरे शहर में ढकने भी लगवा रहे हैं और साथ साथ हमारा अमला रात दिन काम करेगा। और मैं लोगों से इल्तमास करता हूं कि पौधों का खास ख्याल करें, उनकी तोड़ फोड़ के खसूसन तोड़ फोड़ ना करें, ना उसको कोई नुकसान दें। पौधों का खास ख्याल किया जाए। आमिर सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में ज़हनी मासूर बच्चों के स्कूल में दाखिले जारी। 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे दाखिला ले सकते हैं। तफसीलात जानते हैं अलिश वासिफ से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के वाहिद ज़हनी माजूर बच्चों के स्कूल में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त यहाँ की एडमिशन इंचार्ज मौजूद है। जो एडमिशन पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें चंद कंडीशंस हैं जिन पर बच्चे का पूरा उतरना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले नंबर पर है एज। बच्चे की एज 5 to 14 ईयर्स के दरमियान में होना चाहिए। बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होना चाहिए। बच्चे को किसी किस्म के फिट्स नहीं पड़ने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का बी फॉर्म बना हुआ हो और साथ मेडिकल रिपोर्ट जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर दे कि बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है, जहां पर जो भी फैसिलिटीज हम बच्चों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेट्स सपोज एडमिशन के टाइम कोई फीस नहीं ली जाती, कोई मंथली फीस नहीं है। अगर बच्चे को बस की फैसिलिटी मिलती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा मंथली 800 हम उन्हें स्टीफंड भी देते हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, बुक्स और कॉपीज भी उनको फ्री मिलती हैं। जी बिल्कुल, इन बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन इनका किया जाएगा। 5 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं, जिनमें माहाना इनको वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। इसके साथ यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अलिस वासिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।